Hello friends, मैं विधि गुप्ता and I'm very happy to announce that we are launching CFA Level 1 classes. So in today's video, we are going to discuss what CFA is, why one should do CFA, CFA आपको करना ही क्यों चाहिए, उसके क्या benefit है, how it will help in your career. So let's begin with why one should pursue CFA. If you want to make career in finance, CFA certification is the best option. अगर आपको फाइनेंस में करियर बनाना है, अगर आपको फंड्स के साथ बहुत इंटरेस्ट है, पैसे में खेलना बहुत मज़ा आता है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ से पैसा लिया जाए, बिकॉज यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस फंड रेस करने का भी और इन्वेस्ट करने का भी. तो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन फंड्स, CFA इज मेंट फॉर यू. उसके बाद अगर आप CFA कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आपके करियर में कैसे हेल्प होगी. CFA में आपको फाइनेंस रिलेटेड सारी नॉलेज मिलती है, तो इट विल हेल्प यू टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंस रिलेटेड कंपनी. इफ़ यू वांट टू बी वर्क विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में काम करना चाहते हैं, इक्विटी में काम करना चाहते हैं, फाइनेंस के किसी भी फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो CFA will help you with that. As you can screen, I have written some names of some companies जहाँ पे आपको CFA बनने के बाद you will get a very good opportunity. अगर आपने CFA का एक लेवल भी क्लियर किया हो तो आपको ये कंपनीज रादर देन यू हैव टू चूज़ कि आपको कौन सी कंपनी चूज़ करनी चाहिए CFA बनने के बाद, रादर कंपनी आपको चूज़ करे. I am showing you the name of some investment banks, for example Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, Barclays, Morgan Stanley, ICICI Bank, HSBC Bank. आपको इन बैंक्स के नाम ही बहुत फैसिनेटिंग लग रहे होंगे. इफ़ यू वांट टू वर्क विद सच बैंक्स देन यू शुड डू CFA. आने वाले क्लासेस में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी एंड आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स जिन्होंने CFA करने के बाद बहुत अच्छी जगह काम किया है. दे आर वर्किंग विद वेरी वेरी गुड कंपनीज. इन फर्दर क्लासेस आपको मैं दिखाऊंगी हम स्टूडेंट्स जो CFA करने के बाद बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं. इन टूडेज वीडियोज ऑल्सो I will give you example of 2-3 very famous persons who after becoming CFA have done a great job. So let me give you the first example. Bill Miller, a CFA. Bill Miller CFA is the former chairman and chief investment officer of Legg Mason Capital Management and possibly one of the few asset managers to consistently outperform the market. He is one of the person who worked very well. Talking about, he was the investment officer. As I told you, if you want to work with investment banking or you have to have interest in investment, portfolio manage करना है किसी कंपनी का रिस्क मैनेज आपको करना बहुत पसंद है, तो CFA is meant for you. And same was the case with Bill Miller. He graduated with honors in economics from Washington and Lee University and got his doctorate from Johns Hopkins University. He worked in corporate finance as a treasurer for a manufacturing company before joining Legg Mason and has held the CFA Charter 6 1986. आप देख सकते हो कि उस टाइम भी CFA की कितनी वैल्यू थी और आज भी CFA की कितनी वैल्यू है. Next, I am talking about an Indian woman, Ranji H. Nagaswamy. She was a chief investment advisor to Meyer Ballmerg in New York City and directed the investment policy for New York's $120 pension and investment office. Now tell me one thing, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट की नॉलेज चाहिए. अगेन आई एम सेइंग, कहाँ से पैसा उठाना है, कहाँ पर पैसा लगाना है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक द मनी, फ्रॉम वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट मनी. अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज होगी तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे. शी इज़ अ सीनियर एडवाइजर टू Corsair Capital, a private equity firm, and has worked in asset management for Alliance Boston and
UBS and Asset Management. She started as a quantitative analyst for UBS before heading up the US fixed income division. In 2050, she was named as one of the India's top 20 successful women in business and arts. 20 successful women. इतने बड़े लेवल पर आना, it's not an easy task. But she was able to do because of knowledge in finance. Not only knowledge, but degree also matters. She earned her Bachelor of Commerce from Bombay University in 1984 before completing an MBA from Yale and receiving the CFA designation. So this was a brief about one of the top 20 successful women. She was not a top successful woman, but also a CFA. Now let's discuss about CFA में कितने levels होते हैं. So first begin with CFA में कितने level हैं. CFA has 3 level, level 1, 2 and 3. अगर आपने एक भी level अगर आपने level 1 भी clear कर लिया तो you have a great opportunity in your career. CFA level 1 clear करने के बाद भी companies picks you. For example, if you are a graduate student, अगर आप graduation करते करते अपना CFA level 1 clear कर लेते हैं तो during the placement, आपकी placement होते समय आपको company will give priority over the other students क्योंकि आपने CFA level 1 clear किया हुआ है. Your CV will easily get shortlisted. CV shortlist होने के बाद just because you have cleared level 1, you will get an opportunity in a very good company. और उस टाइम भी हो सकता है कि you have to choose कि इन companies में से मैं कौन सी company लूँ. After clearing CFA level 1, next comes level 2. level 1 clear करने के बाद you have to clear level 2, then comes your level 3. अब तीनों लेवल पे फ़र्क क्या है? CFA इंस्टीट्यूट आपसे तीनों लेवल में क्या एक्सपेक्ट करता है? सबसे पहले उससे पहले मैं आपको परसेंटेज बताना चाहूँगी. पासिंग परसेंटेज इन CFA लेवल 1 में आप सोच सकते हैं 41%. अगर 100 स्टूडेंट्स पेपर दे रहा है तो उसमें से 41 स्टूडेंट्स आर गेटिंग पास्ड, विच इज़ अ वेरी गुड रेशो. बहुत अच्छी परसेंटेज है. नेक्स्ट कम लेवल 2 45%, लेवल 3 52%. दिस परसेंटेज इज बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ प्रीवियस 7 to 8 ईयर्स. लास्ट 7-8 साल में एवरेज रिजल्ट CFA का क्या रहा है हर लेवल में, इट्स बीइंग शोन ऑन योर स्क्रीन. नाउ व्हाट इज द फोकस ऑफ लेवल 1? लेवल 1 का फोकस था क्या? It was on basic knowledge of the topic and simple analysis using investment tool. Investment tool, there are multiple tools which are being used for different companies. अगर आप कहीं फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं या फंड से कुछ भी काम कर रहे हैं, you need different models, different techniques and different tools. CFA level 1 आपको उसी की बेसिक नॉलेज देता है कि आपको कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, उसका सिंपल एनालिसिस. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन सब्जेक्ट इफ आई एम टॉक अबाउट दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आप एनालाइज करते हैं किसी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसका ईच एंड एवरी रिलेटेड टू फाइनेंस, उसकी रेशोज. लेवल 1 आपको वो सिखाता है. नेक्स्ट कम लेवल 2. इट is focused on the application of investment tool and valuation techniques for all type of assets. कंपनी के अगर मैं 2 कंपनीज की बात करती हूँ, वन इज़ रियल एस्टेट कंपनी एंड अनदर इज़ लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंक. आप एक इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए जो टूल, जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो आप एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए नहीं यूज़ कर सकते. द रीज़न, उसका एक सिंपल रीज़न है. रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बैंक में आप डिफरेंट पोर्टफोलियो बना के डिफरेंट जगह इन्वेस्ट कर रहे हो. तो यू कैन नॉट यूज सेम टेक्निक्स. डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट टूल. लेवल 2 आपको कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा टूल लगाना चाहिए, कौन सी टेक्निक लगानी चाहिए प्रैक्टिकली, वो सिखाता है. नेक्स्ट कम फोकस ऑफ लेवल 3. CFA level 3 focuses on synthesizing all concept and analytical method in a variety of application.
वो आपको सिखाता है कैसे आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसको डिफरेंट तरीके से अप्लाई कैसे किया जाए। हाईएस्ट वेटेज ऑन इफेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग। आपके पैसे को कहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आज आपकी जेब में 10,000 रुपये है तो आप उससे कहाँ इन्वेस्ट करें। वो 10,000 आपके आज किसी काम के लिए नहीं है, फ्री पड़े हैं ठीक है। अगर आप उसको कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो आज आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर ऑल्सो 5 years। तो आपको बताता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। सो लेवल 3 हेल्प्स यू विद दैट। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट who all can enroll for CFA level 1. First of all, if you have a graduation degree, अगर आपने बैचलरेट ऑलरेडी की हुई है तो you can easily enroll for CFA level 1. बट सपोजिटली अगर आप यू आर इन द मिडल ऑफ ग्रेजुएशन, अगर अभी आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई, देन ऑल्सो यू कैन एनरोल फॉर CFA level 1. Your exam window is in the last 23 month of your bachelor degree. आप as currently the degree has been previously it was for 3 years, पहले वो 3 साल की थी, अब 4 साल की हो चुकी है। तो आपका जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है उससे 23 मंथ्स पहले ही आप CFA लेवल 1 में रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी 4 years की डिग्री है, 4 into 12 48 months, 48 मंथ्स में से आप उसके लास्ट के 23 मंथ्स पहले ही मिनिमम रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब आफ्टर यू कैन से 2 years के बाद ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। बट ऑल्सो इफ़ अगर आपकी अभी भी डिग्री 3 साल की है तो आप उसके 1 साल बाद रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट होने में और CFA लेवल 1 के रजिस्ट्रेशन में जो मिनिमम गैप है वो 23 मंथ्स का होना चाहिए। पहला हो गया आपकी डिग्री कंप्लीट है। सेकंड कम्स कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप मिनिमम 23 मंथ्स प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद तो आप कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कम you have 4,000 hours of work experience, higher education combined, and you have acquired it with a minimum of 3 years of years by date of registration. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 4,000 घंटे वर्क एक्सपीरियंस इन अ फील्ड ऑफ फाइनेंस के किसी भी फील्ड में। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, इवन ट्रेनिंग इज इवन ऑल्सो काउंटेड इन योर वर्क एक्सपीरियंस कि आपने वर्क एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। अगर आपने वो भी किया हुआ है देन ऑल्सो यू बिकम्स एलिजिबल टू अपीयर फॉर CFA लेवल 1. द डेट ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल वर्क सर्विस कैन नॉट बी ओवरलैपिंग। आपकी डेट ऑफ एजुकेशन और प्रोफेशनल वर्क एक साथ ओवरलैप मतलब एक ही टाइम पे नहीं होने चाहिए। तो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस नीड नॉट बी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने CFA करनी है तो इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पेड आर्टिकलशिप और इंटर्नशिप विल बी काउंटेड। अगर आपने कहीं आर्टिकलशिप की है या इंटर्नशिप की है तो वो भी इनकलकेट, वो भी काउंट हो जाती है एंड यू बिकम्स एलिजिबल फॉर CFA लेवल 1. अगर आप CFA में रजिस्टर करना चाहते हो तो सबसे पहले यू शुड हैव अ पासपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रैवल पासपोर्ट। आपके पास एक पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योर पासपोर्ट इशूड, आफ्टर दैट एनरोल फॉर CFA. एवरी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश। आपको हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एग्ज़ाम स्ट्रक्चर ऑफ लेवल 1. लेवल 1 का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है? लेवल 1 इज़ कम्प्लीटली MCQ बेस्ड। सारे के सारे आपको MCQs ही आते हैं। 180 MCQs 2 सेशंस में। मतलब सेशन 1 एंड सेशन 2। फर्स्ट सेशन आपका 2.25 घंटे का, 2 hours 15 minutes। बीच में आपको 30 minutes की ऑप्शनल ब्रेक मिलती है।
इसमें भी आपके 90 MCQs, इसमें भी आपके 90 MCQs आते हैं। दोनों में आपको 90 MCQs सॉल्व करने होते हैं एंड ईच MCQ हैज़ ऑप्शन ऑफ 3 MCQs हैं, सॉरी एक MCQ है, उसके आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से आपको सही आंसर टिक करना होता है। सबसे अच्छी बात ये है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपको MCQ में डाउट भी है कि ये MCQ आपका यू आर वेरी लाइक शायद सही हो शायद गलत हो, तो यू कैन मार्क कि चलो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। नाउ कम्स, अब इन्होंने 2 सेशन में क्यों डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेशन में जो 90 MCQs आते हैं वो कौन से सब्जेक्ट से आते हैं वो अलग है। सेकेंड सेशन में कौन से सब्जेक्ट्स में आते हैं दे आर बाइफरगेटेड। ये नहीं है कि बिल्कुल मिक्सड है कि फर्स्ट 90 MCQs 10 के 10 टॉपिक्स हैं लेवल 1 में तो किसी भी टॉपिक में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो एथिक्स, क्वांट, इकोनॉमिक्स एंड FSA, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इन 4 टॉपिक में से ही पहले 90 MCQs आएंगे। सेशन 2 में जो 90 MCQs है, रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट्स इक्विटी, FI, डेरिवेटिव, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो एंड कॉर्पोरेट इशूअर्स, ये 6 सब्जेक्ट्स में से आएंगे। अगर हम देखें हमारे पास 2.25 घंटे हैं, मीन्स यू हैव 135 मिनट्स, तो एक MCQ को आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप 90 सेकेंड्स देंगे तो एक MCQ अगर आपका हो गया 90 सेकेंड्स में तो आप यू कैन ईजिली आपका पूरा एग्ज़ाम कवर हो सकता है। यू कैन कंप्लीट योर एग्ज़ाम। देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर एनी इनकरेक्ट आंसर इन एनी ऑफ द 3 लेवल। आपको लेवल 1, 2 और 3 में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। एंड द ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इट इज़ एन ऑप्शनल ब्रेक। मतलब अगर सेशन 1 देने के बाद आपको 30 मिनट्स की ब्रेक चाहिए तो आप लीजिए, वरना यू कैन स्ट्रेट गो फॉर सेशन 2। आप सेशन 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नाउ कम्स, एग्ज़ाम्स कितनी बार होता है। एग्ज़ाम्स साल में 4 बार होता है। 1 इज़ इन द मंथ ऑफ फेब, मई, अगस्त एंड नवंबर, और 2 अटेम्प्ट्स के बीच में मिनिमम गैप 6 महीने का होना चाहिए। मतलब अगर आप फेब के बाद दूसरा देना चाहेंगे तो आप यू आर एलिजिबल फॉर अगस्त, आप मई में नहीं दे सकते। एग्ज़ाम देने के बाद आपको 5 to 7 वीक्स के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाता है एग्ज़ाम का। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एग्ज़ाम फ़ी। इफ़ यू वांट टू एनरोल विद CFA इंस्टीट्यूट, आपको 1 टाइम एनरोलमेंट फ़ीस देनी पड़ेगी, दैट इज़ $350। और अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू पे 18% GST। मतलब अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो 350 इंटू, जब आप एनरोल कर रहे हो उस टाइम $1 का रेट क्या चल रहा है इंटू दैट, उस रेट से मल्टीप्लाई करके प्लस 18% उस पर GST आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स, अगर आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, ये तो हो गई आपकी एनरोलमेंट। नेक्स्ट कम्स, अगर आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो उसमें 2 तरीके की है रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट इज़ अर्ली बर्ड, देन कम्स योर स्टैंडर्ड। अर्ली बर्ड में क्या है, CFA इंस्टीट्यूट ने एक स्पेसिफिक डेट दे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मई अटैम्प्ट की बात करूं तो मई अटैम्प्ट के लिए CFA इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर की एक डेट स्पेसिफाई की हुई है कि अगर आप उस डेट तक रजिस्टर करते हैं तो आपको $940 देने पड़ेंगे। बट अगर आप उसके बाद रजिस्टर कर रहे हैं तो यू हैव टू पे अ स्टैंडर्ड फीस विच इज़ $1250। अगेन if you are Indian student then you have to pay GST of 18%। तो आपको $940 इंटू डॉलर का उस टाइम रेट क्या चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करके दैट विल बी योर फीस, प्लस उसके ऊपर 18% GST देना पड़ेगा। इंडियन कैंडिडेट विल हैव टू पे एक्स्ट्रा 18% GST ऑन लेवल 1 एंड एनरोलमेंट के टाइम। बाई चांस ड्यू टू सम रीज़न इफ़ यू हैव टू रीस्केड्यूल, आपको अपना अटैम्प्ट रीस्केड्यूल करवाना है तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा $250। और अगर आपको अपनी फ़ीस डेफर करवानी है, फ़ीस कम वो डेफर करवानी है, देन यू हैव टू सपोज टू पे $399। बट अगर आपको कोई सिवियर सिचुएशन हो जाती है, कोई इमरजेंसी पड़ जाती है एंड इफ़ यू राइट टू CFA इंस्टीट्यूट देन यू आर नॉट सपोज टू पे एनी डेफरल फ़ी।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल 1 में कौन कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या वेटेज दी जाती है ईच सब्जेक्ट को। लेवल 1 में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, एथिक्स, क्वांट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, कॉर्पोरेट फाइनेंस और कॉर्पोरेट इशूअर, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड प्राइवेट वेल्थ। आप देखेंगे स्क्रीन पर इन 10 सब्जेक्ट्स के राइट में वेटेज भी स्पेसिफाइड है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज गिवन है। 15 to 20% टू एथिक्स मीन्स 100% में से मिनिमम 15% का तो एथिक्स में से आएगा ही आएगा, बट CFA इंस्टीट्यूट मैक्सिमम 20% का भी एथिक्स में दे सकते हैं। आप देख सकोगे एथिक्स को बहुत ज़्यादा वेटेज दी गई है, उसका भी एक रीज़न है। अगर आप CFA के मेंबर हो या आपके कैंडिडेट हो तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन CFA इंस्टीट्यूट रखता है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। क्वांट को 6 to 9% की वेटेज, इकोनॉमिक अगेन 6 to 9, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11 to 14%, इक्विटी 11 to 14, फिक्स्ड इनकम ऑल्सो 11 to 14, डेरिवेटिव 5 to 8%। आप देख रहे होंगे इक्विटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिक्स्ड इनकम को बहुत अच्छी वेटेज गिवन है आफ्टर एथिक्स। फाइनेंस बिकॉज मेन प्रैक्टिकल, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग प्रैक्टिकल तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता होना चाहिए, इक्विटी में कैसे डील करना है, कंपनी की फिक्स्ड इनकम में कैसे डील करना है आपको पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट इशूअर और फाइनेंस को 6 to 9% की वेटेज, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट को 7 to 10% की वेटेज गिवन है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड प्राइवेट वेल्थ अगेन 8% to 12%। पोर्टफोलियो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस, क्यों इतनी वेटेज गिवन है वो भी आपको व्हेन यू विल लर्न अबाउट द सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट में क्या है, क्या टॉपिक है, देन यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि CFA इंस्टीट्यूट ने हर सब्जेक्ट को इतनी वेटेज क्यों दी है। लेट्स स्टार्ट विथ एथिक्स। एथिक्स जिसको CFA इंस्टीट्यूट ने सबसे ज़्यादा वेटेज दी है, 15% मिनिमम एंड मैक्सिमम 20%। एथिक्स क्या है? अगर आप एक मेंबर या कैंडिडेट हो CFA इंस्टीट्यूट के, तो CFA इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ गाइडेंस, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नॉर्म्स, कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ वैल्यूज CFA इंस्टीट्यूट की फॉलो करें। मतलब अगर आप CFA इंस्टीट्यूट के मेंबर और कैंडिडेट्स हैं तो CFA इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपका बिहेवियर एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, कि आप मार्केट में, आप सोसाइटी में अच्छे से वर्क कर तो रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं तो क्या आप उसके स्टेक होल्डर्स के बारे में सोच रहे हैं। नाउ स्टेक होल्डर्स क्या है? क्रेडिटर्स, क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, आपने जिससे लोन लिया हुआ है, डेट, अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है, सिक्योर्ड लोन्स लिया हुआ है, बैंक्स एक्सेट्रा। CFA इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं एक कंपनी के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए या फिर उन स्टेक होल्डर्स के लिए, वेदर यू आर वर्किंग वेल, आप कोई मैनिपुलेशंस तो नहीं कर रहे हैं। तो एथिक्स इज़ अ बेसिक गाइडलाइंस और एक प्रिंसिपल है जिस पे CFA इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है उसके हर कैंडिडेट और हर मेंबर काम करे। CFA एथिक्स में अब क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं CFA इंस्टीट्यूट से? फर्स्ट एथिक्स एंड ट्रस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन, एथिक्स एंड ट्रस्ट। इसमें CFA इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अगर एक चार्टर्ड होल्डर है या आप एक कैंडिडेट भी है CFA इंस्टीट्यूट के, तो आपको प्रोफेशनली कैसे बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एज्यूम करें, अगर एक आप देखोगे डॉक्टर की या फिर एक लॉयर की, उनके भी कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। डॉक्टर्स के भी आप देखोगे, डॉक्टर्स के लिए भी उसका पेशेंट एक इम्पॉर्टेंट होता है, दैट डॉक्टरेट डिग्री टीचेस देम। इन अ सिमिलर वे CFA इंस्टीट्यूट आपको गाइड करता है आपको फाइनेंस वर्ल्ड में कैसे बिहेव करना है, कैसा एटीट्यूड रखना है, कौन से प्रिंसिपल फॉलोज करने हैं। नेक्स्ट कम कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। आप अपने आप को कैसे कैरी करेंगे, आपको कौन से एथिक्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट एथिक्स में CFA इंस्टीट्यूट ने 7 स्टैंडर्ड्स दिए हैं। आपको वो स्टैंडर्ड्स, वेदर इट इज़ ड्यूटी टूवर्ड्स क्लाइंट्स, टूवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज़, टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स या क्लाइंट, किसी के भी प्रति
आपकी क्या वैल्यूज़, क्या प्रिंसिपल पे आपको वर्क करना चाहिए, वो इन गाइडेंस स्टैंडर्ड्स में स्पेसिफाइड है। हर स्टैंडर्ड आपको कुछ ना कुछ चीज़ सिखाता है कि आपको क्या वैल्यूज़ फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट कम इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड GIPS। वो आपको एक इंटेग्रिटी सिखाता है कि आपको मार्केट में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में हाउ यू शुड वर्क इंटेग्रली। एथिक्स की एप्लीकेशन कहाँ और कैसे होती है, लास्ट इज दैट विच वी आर गोना रीड इन एथिक्स। नेक्स्ट कम क्वांट। क्वांट में अगर हम डिस्कस करें तो क्वांट में सबसे पहले तो आप अपना फोबिया हटाइए कि क्वांट इज इक्वल टू मैथ्स। ऐसा नहीं है, क्वांट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैथ्स। अगर आप स्क्रीन पे कुछ नाम भी देखेंगे, कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं, उससे भी आप रियलाइज़ करोगे कि अरे नहीं, ये मैथ्स नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं रेट एंड रिटर्न्स। अगर आप कहीं पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं एंड एट द विच रेट। अगर आपकी पॉकेट में आज 1000 रुपये है और वो आपको नहीं चाहिए करंटली, दैट मनी इज़ फ्री। अगर आप उसको ऐसे ही 1 साल या 4 साल के लिए पड़े रहने दीजिए तो आपके पैसे में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा, वो 1000 रुपये ही रहेंगे। रादर इन्फ्लेशन की वजह से उस वैल्यू को फ्यूचर में थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब उस 1000 से सपोजिटली अगर आप एक लेट से कोई अच्छी बुक खरीद सकते थे तो 3 साल बाद देखेंगे तो वो शायद बुक 1000 की नहीं 1100, 1200 या 1300 की भी हो सकती है। नेक्स्ट कम रिटर्न्स। अगर आप उसको कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको शायद हो सकता है उसे शायद क्या आपको उसे पैसा ज़्यादा मिलेगा। मतलब अगर आपने 1000 रुपये 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए या 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए तो आपको उस पर कुछ तो रिटर्न आएगा। तो हम इसमें एनालाइज करते हैं कि वो 1000 रुपये मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मुझे वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट कम्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी मैं आपसे बोल रही थी कि 1000 की बुक जो आज मुझे मिल रही है हो सकता है 2-3 साल बाद वो मुझे 1200-1300 की मिले। दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम के चलते हुए पैसे की क्या वैल्यू रह जाएगी। स्टैटिस्टिकल मेजर्स में हम लोग बात करते हैं एक स्टैट्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं आपसे, स्टार्टअप के बारे में डिस्कस करूं आपसे, तो सपोजिटली मार्केट में 100 स्टार्टअप्स का मैं स्टार्ट लेती हूँ, 100 स्टार्टअप्स को देखती हूँ और उसको देख के मुझे रियलाइज़ होता है कि 100 में से हार्डली 5% ऐसे स्टार्टअप्स हैं, 5 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो 3 से 4 साल में बहुत अच्छे से ग्रो करके विच कम इनटू प्रॉफिट। 15 से 20 साल में सिर्फ 10 से 12 स्टार्टअप हो पाए। 100 में से 25 स्टार्टअप तो लॉसेस में है और कुछ शट डाउन भी हो गए हैं। ये क्या है, मेरा एक स्टैट्स ही है, मैं एनालाइज ही करूँ डेटा के बेसिस पे कि स्टार्टअप में कितने स्टार्टअप सक्सेसफुल थे, कितने लॉसेस में जा चुके, कितने इवन शट डाउन हो चुके। तो एक कॉन्ट में हम ये पढ़ते हैं, एक स्टार्ट देखते हैं कि किस बेसिस पे, अगर मुझे एक स्टार्टअप का स्टार्ट पता है उसके बाद मैं अपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा के सोचूंगी मुझे क्या ये वाला स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस, कितने चांसेस है जिस स्टार्टअप में मैं लगा रही हूँ वो ग्रो करेगा, प्रॉफिट में आएगा, या कितने चांसेस है कि वो शट डाउन भी हो सकता है, लॉस में भी जा सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ मेथड्स और टेक्निक्स के नाम लिखे हुए हैं। इस मेथड और इस टेक्निक में हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सी टेक्निक कहाँ पे लगेगी और उस टेक्निक से हमें क्या फ़ायदा होगा। मैं एक एग्जांपल, एक टेक्निक यहाँ से जैसे लेती हूँ, सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है, हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेट से मेरे पास 10,000 किसी चीज़ का डेटा है जिसमें 10,000 फिगर्स है, 10,000 ऑप्शन है। तो इट बिकम वेरी अनकम्बरसम कि मैं सारी चीज़ डिटेल में देखूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि समटाइम्स यू आर शॉर्टेज ऑफ टाइम कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा और मुझे इस हफ्ते के अंदर या इस मंथ के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। इधर आई हैव टू इन्वेस्ट एट अ गुड प्लेस या फिर मैं उसको किसी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने वाली हूँ। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग सैम्पलिंग 10,000 में से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कि हम तो 1000 ऑप्शन ही चूज़ करेंगे, हजार को ही हम लोग एनालाइज करेंगे। तो उन 10,000 में से हम सैम्पल बेसिस पे कोई 1000 आइटम्स, 1000 ऑप्शंस चूज़ करते हैं और उन्हीं के ऊपर हम एनालाइज करते हैं, उन्हीं के ऊपर सारे टेक्निक, सारे मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट इज सिमिलर लीनियर रिग्रेशन इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा टेक्निक। अब डेटा इतना बड़ा है,
एनालाइज सैम्पलिंग टेक्निक भी चलो एक टेक्निक है, हम यूज़ कर रहे हैं। आज के इन टुडे वर्ल्ड वी आर यूजिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम लोग उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम हो जाती है। तो बिग डेटा को कैसे मैनेज करना है, दैट इज़ कम्प्लीटली डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के थ्रू। एज यू कैन सी ChatGPT आ गया है, गूगल AI आई है, आप कुछ भी सर्च करो आपको साथ साथ मिल जाएगा। इफ़ यू आर राइटिंग अ नेम ऑफ सम फेमस पर्सन, आप उसको उसकी सारी हिस्ट्री ले सकते हो। तो बिग डेटा में हम लोग कुछ टेक्निक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात करूँ, मशीन लर्निंग की बात करूँ, हम वो इम्प्लीमेंट करके बिग डाटा की अच्छे से सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अगेन इट्स वेटेज इज समवेयर बिटवीन 6 to 9%। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस अबाउट फर्म्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं, ये आपने कहीं नाम सुने होंगे, अगर थोड़ा याद हो, 11th-12th में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। CFA और 11th-12th में क्या फ़र्क है कि अगर हम बात करें जैसे परफेक्ट मार्केट की, मोनोपोली, दिस आर मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, हम उसको बहुत छोटे एरिया में, छोटे दायरे में, हम एक लेवल तक ही डिस्कस करते थे। बट CFA पे हम चीज़ें इंटरनेशनली डिस्कस करते हैं कि अगर हम इस मार्केट में काम करें, अगर सपोजिटली मैं मोनोपोली मार्केट में काम कर रही हूँ, नॉट नेशनली बट इंटरनेशनली, उसका क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट कम अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल। ग्रोथ का फेज आता है, इनिशिएशन का फेज आता है, एक बिल्कुल मैच्योरिटी का फेज आता है। तो हमारा प्रोडक्ट कहाँ सेंड कर रहा है, वो सब चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कम्स फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरनेशनली, नेशनल लेवल पे तो हमने बहुत पढ़ा है, इंटरनेशनली अगर लेट्स आई मीन मैं इंडिया में काम कर रही हूँ, ठीक है, अगर USA में या UK में कोई मॉनेटरी पॉलिसी या कोई फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है, तो उसका मेरी इकॉनमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या द कंपनी आई एम वर्किंग विद उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम वो चीज़ एनालाइज करते हैं कि एक पॉलिसी वेदर इट इज़ इन माय डोमेस्टिक मार्केट, मेरी अपनी कंट्री में या फॉरेन कंट्री में चेंज होती है, तो उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इंट्रोडक्शन टू जियो पॉलिटिक्स। इंट्रोडक्शन टू जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का ग्लोबली इतनी पॉलिटिक्स चलती है, कहीं वॉर चल रही है, कुछ हो रहा है, लेट्स से अगर अभी आप करंट सिचुएशन भी देखेंगे, बहुत सारी वॉर्स चल रही है, तो उस वॉर का या पॉलिटिकल कोई डिसीजन लेता है, मोदी जी हमारे कोई डिसीजन लेते हैं इंटरनेशनली कि ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे या इस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बंद होगा, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक डिसीजन का इफेक्ट एक इंडस्ट्री पे नहीं पड़ता, इट अफेक्ट मल्टीपल इंडस्ट्रीज, रादर इट अफेक्ट द कंप्लीट मार्केट। अगर आप जैसे बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं CFA की ही बात कर रहे हैं, CFA में हम लोग देखते हैं कि एक डिसीजन लेने के बाद मेरी डोमेस्टिक मार्केट में कितना इम्पैक्ट पड़ा, इंटरनेशनली उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड मैं चाइना के साथ या USA के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हूँ, उस एक्सपोर्ट की वजह से लेट्स से अगर मैं राइस की बात करती हूँ, राइस का एक्सपोर्ट पीछे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, डोमेस्टिक मार्केट में राइस की शॉर्टेज हो गई थी। तो उसकी वजह से मोदी जी ने क्या डिसीजन लिया, क्या हमें करना चाहिए, क्या पॉलिसी, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या डिसीजंस लिया, एक्सटर्नली हम लोगों को किसके साथ कैसे डील करना चाहिए, या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हमारी डीलिंग कैसी होनी चाहिए, राइस पे मोदी जी ने। नेक्स्ट कम्स इंटरनेशनल ट्रेड। मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट भी करती है, इंपोर्ट भी करती है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अभी आप पीछे सुनेंगे कि राइस की एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इंडिया में राइस की शॉर्टेज हो गई थी। उस टाइम पे मोदी जी ने क्या डिसीजन लिया, इंटरनेशनली कितना ट्रेड होना चाहिए, कितना राइस जाना चाहिए, या उसके ऊपर कौन से ऐसे बैरियर्स लगे जिसकी वजह से डोमेस्टिक सप्लायर्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दें। कैपिटल फ्लो एंड द एफएक्स, दैट इज़ फॉरेक्स मार्केट। कैपिटल का हमारी मार्केट में या फॉरेक्स एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज की वजह से क्या इफेक्ट होता है मार्केट के प्राइस में। डॉलर का प्राइस इन इंडियन रुपीस, $1 लेट से 60 रुपीज़ का है, कल वो 62 रुपीज़ का हो जाए, तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी मार्केट में।
तो वो चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इट इज़ अ वेरी गुड वेटेज विच इज़ गिवन बाय CFA इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? एक कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी ऑनर, ये जब हम चीज़ें देखते हैं, दीज ऑल कम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एक कंपनी की बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को या कैश फ्लो को एनालाइज करना कम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब पॉइंट आता है हम उनको एनालाइज कैसे करते हैं। देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, different techniques which are being used for analyzing financial statements. सबसे पहले हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। अब एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, एग्जाम्पल चलो लेते हैं हम लोग। अगर मैं एक रियल एस्टेट, वापस से मैं उस एग्जाम्पल पर आ रही हूँ, अगर मैं एक रियल एस्टेट की कंपनी का एनालिसिस करती हूँ या फिर एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, दोनों के पैरामीटर्स अलग होंगे। अगर मैं एक बैंकिंग की बात करूँ, स्पेसिफिकली बैंकिंग में, तो बैंकिंग का फोकस रहता है अपने NPAs पे या बैड डेट्स पे। फ्यूचर में कंपनीज के कितने एसेट्स हैं जिससे उनको एक्सपेक्टेड है कि पैसा नहीं रिकवर होने वाला या पैसा बहुत लेट रिकवर होने वाला है। उसी तरीके से मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो रियल एस्टेट में एक एम्प्लॉयर या एक पर्सन ऑनर चेक करता है कि उसका पैसा कितनी देर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी पे स्टक है या उस प्रॉपर्टी के प्राइस क्या इंक्रीज होने वाले हैं, क्या डिक्रीज होने वाले हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट वर्क करता है। NGOs की बात करें तो NGOs का मेन टारगेट होता है सोशल वेलफेयर, तो उसमें हम लोग डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं, चाहे उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो। नेक्स्ट कम्स कैश फ्लो। एज यू नो, कैश फ्लो में अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपने बहुत डेप्थ में थोड़ा देखा होगा। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट, 3 एक्टिविटीज़ हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। उन्हीं एक्टिविटीज़ को इन वेरी डिटेल हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में एनालाइज करेंगे। किस इन्वेस्टमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा है या उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है, या हम लोग फाइनेंस अगर इक्विटी से करें कम्प्लीटली या डेट में करें, या इक्विटी और डेट का कितना स्ट्रक्चर रखें जिससे हमारी कंपनी बेनिफिट में जाएगी। उसके बाद अगर आप कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें इन्वेंट्री बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन दैट केस हम उस कंपनी की इन्वेंट्री बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं कि उस इन्वेंट्री में वेदर इट इज़ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड, उस इन्वेंट्री के कितने चांसेस है कि वो फ्यूचर में ऑब्सोलीट हो जाएगी, या वो इन्वेंट्री, कितना पैसा हमारा इन्वेंट्री में ब्लॉक है, कितने टाइम पीरियड में वो इन्वेंट्री कैश में, लिक्विड कैश में हमारी कन्वर्ट हो सकती है। तो उसे हम उस तरीके से अच्छे से एनालाइज करते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स, अगर मेरे एसेट्स में मेरा कैपिटल फंड इन्वेस्टेड है तो उस एसेट से मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, फ्यूचर में उसका क्या बेनिफिट है, उससे मैं कितना पैसा निकालने वाली हूँ, या मुझे फ्यूचर में चांसेस हो सकते हैं कि किसी लेट से मैंने मशीनरी में इन्वेस्ट किए 4 करोड़ 5 करोड़ लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तो वो कितने टाइम बाद उसका कोई मुझे पार्ट में री इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो वो हर चीज़ हम लोग एनालाइज करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स की। मशीनरी वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म एसेट्स में बहुत आते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट ही कहीं बहुत अच्छी जगह किया हो, उस इन्वेस्टमेंट की हम लोग एनालाइज करते हैं कि चलो अगर हम 3 साल बाद या 4 साल बाद उस पैसे को मैं कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो व्हाट वुड बी माई रिटर्न। अब ये थी मेरे बैलेंस शीट की एसेट साइड की बात। अब मैं करती हूँ लाइबिलिटी साइड की बात। लाइबिलिटी में आपको पता है सबसे पहले आता है इक्विटी, ऑनर का खुद का पैसा, उसको एनालाइज करना, कितना इक्विटी होना चाहिए मेरा इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में। अगर मेरी इक्विटी लेट से 60% है, डेट मेरी 40% है, क्या मेरे को तब बेनिफिट है, या 50-50 की रेशो है, 75-25 की रेशो है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है तो कितने का लोन ले रखा है, सपोजिटली मैंने बैंक से लोन ही बहुत ज़्यादा ले रखा है, या मैंने डेट ले रखा है दैट इज़ एट अ वेरी हायर प्राइस, मैंने बहुत अच्छे प्राइस, बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे, मैंने 15 मार्केट में डेट, मेरी इंडस्ट्री में कंपनीज ने 10% या 12% पे डेट ले रखा है, वेयर एज आई हैव टेकन द सेम डेट एट 15%। तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब चीज़ें हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में चेक करते हैं। एनालिसिस ऑफ इनकम टैक्स,
इनकम टैक्स में हम ये नहीं चेक कर रहे सिर्फ कि हम लोगों को टैक्स कितना पे करना है, इसमें हम लोग डेफर टैक्स के बारे में भी बात करेंगे। डेफर टैक्स एसेट्स और लाइबिलिटी, कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स भी डिफरेंट तरीके के, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। और अगर आज हम टैक्स नहीं पे कर रहे ड्यू टू डिफरेंट ऑफ लाइक अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें तो हम उसमें कंपनीज एक्ट भी लगाते हैं, इनकम टैक्स भी एक्ट लगाते हैं। टाइम डिफरेंस की वजह से आज आप शायद कम टैक्स पे कर रहे हो, बट यू नो आपको फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डेप्रिसिएशन लगाते हो, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी वजह से आपको आज कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है और फ्यूचर में ड्यू टू डिफरेंट एक्ट्स बीइंग अप्लाइड आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया, आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अब आप इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी से अगर मैं फाइनेंशियल स्टेट एनालिसिस टेक्निक्स की बात करूं या मॉडलिंग की बात करूं, आप एक कंपनी की लिक्विडिटी चेक करने के लिए आप उसकी कैश रेशो भी देखोगे, आप उसकी करंट एसेट रेशो भी देखोगे, आप उसकी क्विक रेशो भी देखोगे। सॉल्वेंसी के लिए आप उसकी डिफरेंट, टर्नओवर के लिए आप उसकी डिफरेंट रेशो देखोगे। तो आप ये रेशोज देख के दिस रेशो इज़ वेरी माइन्यूट पोर्शन की चलो आप रेशो चेक कर रहे हो। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें देखकर इन सब डिफरेंट एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को आप एनालाइज करते हैं। अब ये तो हो गया, आपने डिफरेंट रेशो के अलावा बहुत सारे मॉडल्स हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास में, एक एक करके एक एक मॉडल, एक एक टेक्निक विल गोइंग टू डिस्कस। आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया कि कौन सा मॉडल यूज़ किया है, कौन सा टेक्निक यूज़ किया है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं। अब आते हैं, आपने सब देख लिया, उसकी प्रेजेंटेशन की बारी। उसको आप अपनी रिपोर्ट में कैसे दिखाओगे। अगर एक CFA अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देता है, उसके बेसिस पे काफ़ी स्टेक होल्डर्स का, वेदर इट इज़ इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, एम्प्लॉयज़, सबके डिसीजंस डिपेंड करते हैं। एक CFA के सिग्नेचर या एक CFA के अप्रूवल के बाद दैट रिपोर्ट बिकम्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिपोर्ट। दे हैव अ ट्रस्ट कि अरे CFA ने साइन किए होंगे, CFA की स्टैंप है, तो इट मीन्स आई कैन रिलाई ऑन दिस रिपोर्ट। तो इट्स डिपेंड कि आप अपने रिपोर्ट में हर चीज़ कैसे दिखा रहे हैं, कैसे एनालाइज करवा रहे हैं, कैसे सम अप कर रहे हैं। आप बता रहे हो कंपनी की लिक्विडिटी रेशो कितनी है या कंपनी फ्यूचर में कितना इन्वेस्ट करने वाली है। तो ये सब कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल क्या है, क्या कंपनी को कुछ चेंजेस करने चाहिए, या डेट इक्विटी रेशो क्या है, क्या उसे चेंज करने से कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट हो सकता है। तो आपको वो प्रेजेंट करनी है। द पॉइंट इज, आपने फाइंडिंग्स कर ली, अगर आप उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्या उस फाइंडिंग्स का कोई फ़ायदा है? द आंसर इज़ बिग नो। जितना अच्छे से फाइंड किया है उसको उतने अच्छे से रिफाइंड वे में प्रेजेंट करो। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई ना, तो आपको स्टेक होल्डर्स या कॉम्पिटिटर्स भी अगर ओवरव्यू लेना चाहिए कि चलो हम एनालाइज करते हैं कंपैरिजन के लिए, विच एवर पर्सन इज़ यूजिंग दैट रिपोर्ट, उसको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिलनी चाहिए इस कंपनी की। चलो इस रिपोर्ट के बेसिस पे आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस। अब मैं रेशियोज की बात कर रही थी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स की बात कर रही थी। आप देखोगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है क्या? रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स विच आर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 to 10 years फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। मैं अपनी किसी फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री में कर रही हूँ, मेरा फंड, मेरा कैपिटल कुछ टाइम के लिए वहाँ पे ब्लॉक होने वाला है। उसे कितने टाइम के लिए मेरा फंड ब्लॉक होने वाला है, क्या उस टाइम पीरियड से एक्सीड कर सकता है? अगर हमें कोई पैसा 5 से 10 साल के लिए चाहिए किसी फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, देन इट बिकम्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। मैं रेशो की बात कर रही थी अभी आपसे, जैसे लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, टर्नओवर। आप देख सकते हो, अगर मैं किसी कंपनी की लिक्विडिटी रेशो देख रही हूँ, मैं उसकी करंट रेशो भी देखूंगी, क्विक रेशो भी देखूंगी, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, कैश रेशो भी देखूंगी। इन अ सिमिलर वे टर्नओवर की बात करूँ, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैपिटल टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, कैश कन्वर्जन, नेटवर्किंग। सेम्स कम ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, अगर कंपनी ऑपरेट कर रही है तो उसका अर्निंग मार्जिन कितना है, मैंने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न कितना आ रहा है, मेरी इक्विटी पे कितना रिटर्न है, मेरी अर्निंग पर शेयर कितना है। इन अ सिमिलर वे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बाकी सब चीज़ें भी गिवन है।
क्लास में विल डिस्कस एंड ईच एंड एवरी करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं, कौन सी रेशो अगर सपोज 1 से ज़्यादा ऊपर है, 1 है दैट इज़ गुड रेशो, कम है तो लिक्विडिटी क्रंच है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप देखोगे टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स का मैंने एक ब्रीफ लगाया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पे आप देखोगे कंपैरिजन ईयर और ईयर बेसिस किया जा रहा है कि कंपनी की ऊपर डीपीएस की बात, डिविडेंड पर शेयर कितना मिल रहा है। 2004 में देखोगे आप तो 8 रुपये मिला है, 5 में 12.5, 2006 में 13, 2007 में 15, 2008 में 15। अगर कंपनी डिविडेंड पर शेयर दे रही है इट मीन्स कंपनी की या तो अर्निंग अच्छी हो रही है या फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो कंपनी अच्छा करना चाह रही है ताकि इक्विटी होल्डर्स खुश रहें। उसी तरीके से आप नीचे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मेरी कॉस्ट ऑफ, अगर मैं डिविडेंड पे कर रही हूँ मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या मेरा ग्रोथ रेट आप देखेंगे नीचे, ये ग्रोथ रेट कितना है, 2001 में 21% था ऑलमोस्ट, 2005 में 19%। तब भी ग्रोथ रेट थोड़ा सा गिरने के बाद भी कंपनी इज पेइंग डिविडेंड, वाई द कंपनी इज पेइंग। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग एनालाइज करते हैं, बीइंग अ CFA, बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। एनालाइज करने के बाद पे वी जनरेट आर रिपोर्ट, उसकी बेसिस पे जो स्टेक होल्डर्स है दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस। नेक्स्ट इज, थर्ड इज कॉर्पोरेट इशूअर्स। नेक्स्ट कम्स corporate issuer. Again, the weightage of corporate issuer is somewhere between 6% to 9%. इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, कॉर्पोरेट इशूअर, फीचर्स एंड ऑनरशिप, इसमें हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट। सबसे पहले अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं वी कैन डू सोल प्रोप्राइटर, वी कैन बी अ सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट कम्स पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में भी यू कैन बी अ जर्नल पार्टनर, you can be a partnership by LLP, limited liability partnership. next come corporate, corporate में हम लोग एक कंपनी बना देते हैं which is a separate legal entity. ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप के, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट। क्या डिफरेंस है, एक सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट से कैसे अलग है, या एक कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर से कैसे अलग है। ये सब चीज़ें हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर कॉर्पोरेट इशूअर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट कम इन्वेस्टेड एंड अदर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स अभी मैंने आपको बताया था, स्टेक होल्डर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, वी टेक क्रेडिटर्स, आर क्लाइंट्स, आर एम्प्लॉयज, द पर्सन हु हैज गिवन अस लोन्स, बैंक्स, डेट्स, इक्विटी, एवरी स्टेक होल्डर इज बीइंग डिस्कस कि हम हर स्टेक होल्डर का, अगर वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट क्या है और उसके इंटरेस्ट को हमें कैसे हैंडल करना है। मतलब किसी स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट कंपनी की किसी एक्टिविटीज से हैम्पर तो नहीं हो रहा। इवन गवर्नमेंट, आर सोसाइटी, ईच एंड एवरी पर्सन इज अ स्टेक होल्डर ऑफ अ पर्सन वर्किंग ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स। अब हर कॉर्पोरेट में कुछ ना कुछ इश्यू रहते हैं, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट रहते हैं, रिस्क रहते हैं, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे वो डिस्कस करेंगे। एक कंपनी को चलाने के लिए हमें 2 तरीके के फंड्स चाहिए होते हैं, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में हम लोग कंपनी के फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो रोज़ रोज़ नहीं किए जाते हैं। हम फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की मशीनरी में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है उसकी मशीनरी में हम 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस या पार्ट चेंज होना दैट इज़ नॉट रेगुलर, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस चलती रहती है। बट कैपिटल में ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम एक ही बार करते हैं, फिर जब वो मशीन कभी ख़राब या ऑब्सोल्यूट होती है देन वी चेंज दैट मशीनरी। वर्किंग कैपिटल, एक फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए रोज़मर्रा के काम के लिए, उस कंपनी को रन करने के लिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी इज वर्किंग कैपिटल। लिक्विडिटी, कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, उसके पास कैश कितना है, या वो अगर सपोजिटली अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसकी वजह से कंपनी को या कॉर्पोरेट को या फिर बिजनेस को इमीडिएट फंड की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी लिक्विडिटी कितनी है, हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, बैंक में कितना पैसा है, या कोई हमारे पास ऐसा करंट एसेट है,
हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ आवर लिक्विडिटी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने जैसे आपको बताया, अगर मैं कंपनी के फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ। कैपिटल एलोकेशन, कितना पैसा किसको एलोकेट करना है, कितना पैसा मुझे फिक्स एसेट में लगाना है, कितना मुझे इंफ्रा में लगाना है, कितना मुझे फ्यूचर इन्वेस्ट करना है। जो मेरे पास आज पैसा पड़ा है, लेट्स से मेरे आई एम हैविंग 100 करोड़ रुपीज़ इन माई हैंड, उस 100 करोड़ रुपीज़ को मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे वर्किंग कैपिटल रखना है डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए। तो वो सब चीज़ें हम लोग कॉर्पोरेट इश्योर में देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, अब मेरे पास इन हैंड 100 करोड़ रुपीज़ है एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेट, वो 100 करोड़ रुपए मेरे पास कहाँ से आया है। सपोजिटली अगर मैंने कंपनी स्टार्ट की है तो मुझे इक्विटी से 20-30 करोड़ रुपीज़ आया है। डेट से मैंने पैसा लिया है 20 करोड़, लेट से 50 करोड़ मैंने इक्विटी से लिया, 20 करोड़ मैंने डेट से राइज किया, 30 करोड़ मैंने बैंक से किया। कॉर्पोरेट कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना पैसा मैंने कौन से सोर्स से यूज़ किया। नेक्स्ट कम बिजनेस मॉडल्स, हम लोग कौन से बिजनेस मॉडल यूज़ कर रहे हैं ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए, अपना फंड मैनेज करने के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट मैनेज करने के लिए, कंपनी का पैसा मैनेज करने के लिए, बिजनेस को अच्छे से हैंडल करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स यूज हो जाते हैं। तो विच मॉडल्स विच आर यूजिंग इन डिफरेंट इंडस्ट्री इन अ डिफरेंट कंपनी। नेक्स्ट कम्स, so these were the 5 subjects which will be taken by me. Remaining 5 subjects will be taken by another faculty, CA Naiya Sachdeva. She'll gonna discuss about that 5 subjects, an overview of those 5 subjects in her video. Still, if you have any query or you need any support for sport related queries, you can contact us on our Telegram channel @CFA by AJSA, or you can pin us on a mail. Our mail ID is pendrivebyclassajc@gmail.com. For some academic related query, you can telegram us at @Vidhi Gupta. Thank you so much.